today let's start with chapter number 4, introducing Excel 2019. So in this chapter I will tell you about the Microsoft Excel 2019. It is a spreadsheet in which it is a part of Microsoft Office suite. It can be used to construct format workbook for analyzing and displaying data. यहाँ पे रोज कॉलम्स होते हैं, इंसर्शन होता है इन दोस टूल्स का जिसे हम सेल्स कहते हैं. So you can use Excel 2019 to handle data arithmetically as well as in the form of charts. You can build 3-dimensional graphic display and you can set it enable to display in the form of diagram also. ठीक है, आप diagram के form में भी कर सकते हो. So what are its advantages? Let's study about it advantages. ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, राइट? इट्स द बेस्ट वे टू स्टोर द डाटा. नेक्स्ट इज यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन. आप कैसी भी कैलकुलेशन करनी है, कोई बड़ी हो छोटी हो, तो आप इसमें इजिली कर सकते हैं. ऑल द टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस में सारे टूल्स है जिससे आप डाटा को एनालाइज कर सकते हो. इजी टू विजुअलाइज डाटा इन एंड चार्ट्स. यू कैन प्रिंट रिपोर्ट इजिली. यहाँ पे आप फ्री टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हैं. कोड टू ऑटोमेट भी आप यूज कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन डाटा. स्टोर डाटा विद मिलियन ऑफ रोज. आप डाटा को स्टोर कर सकते हो विद मिलियंस ऑफ रोज. यू कैन वर्क विद एक्सेल ऑनलाइन प्लस मोबाइल ऐप. आप ऑनलाइन प्लस मोबाइल ऐप का भी यूज करके इस पे वर्क कर सकते हो. सो नाउ लेट्स स्टडी हाउ वी कैन यूज एक्सेल. सो it is the best part. It can apply to many business tasks including statistics, finance, data management, forecasting, analyze, tracking inventory and billing and business intelligence. ठीक है, बेसिकली हम एक्सेल का यूज करते हैं कि अपने डाटा को चेक करते थे. जैसे हम कहीं बहुत सारे फैक्ट्रीज में कि कितना आपके पास आउटपुट है, मतलब आपके पास सामान रखा है, क्या क्या आपका काम हो गया है, कितनी इन्वेंट्री है, ये सब चेक करते हैं. सो यू कैन few things that can be do for you: number crunching, charts and graphics, store and import data, manipulating, templates and dashboard, and automation of tasks you can do here. Next is starting Excel. How you can start this Excel program? So first of all, you will go to start button and then you will click to all apps. आप scroll करोगे, जैसे आपको MX Excel दिखाई देगा तो आप उस पर डबल क्लिक करोगे, your Excel screen window will appear on the screen. Like this, your Excel window will appear on the screen. This is your Excel window. From Excel start screen, locate and select blank workbook. यहाँ से आप blank workbook select कर सकते हो and what it's give you, it will appear with various elements. और आपको यहाँ पे बहुत सारे elements देखने को मिलेंगी. Like exploring the Excel 2019 word. Now let's see its different elements. ये क्या है आपका quick access toolbar. This is file tab, right? This is a name box. ये आपका green हो रहा है, ये क्या है आपका active cell, right? ये पूरा आपका tab हो गया जहाँ पे name वगैरह होते हैं. ये आपका पूरा क्या हो गया, ribbon हो गया. और ये क्या है आपका formula bar. ठीक है, ये column header है जहाँ पे ये this is your column header. ठीक है, ये आपके ग्रिडल्स हैं, ये वर्कशीट है. दिस इज योर स्टेटस बार. यहाँ से आप वर्कशीट को व्यू कर सकते हो. यहाँ ये जूम कर, आपको बड़ी करनी है, छोटी करनी है. ठीक है, ये दो, ये वाला और ये क्या है आपके सेल्स हैं, ये रो हेडिंग है. ठीक है, दीज ऑल आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पावर पॉइंट एक्सेल, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. नाउ लेट्स स्टडी देम ब्रॉडली. फर्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार. So it lets you to access command no matter which tab is selected. You can customize the commands depending upon your preference. आप अपने commands को customize कर सकते हो अपने preference के हिसाब से. So then is ribbon. It contains all of the commands you need to perform common tasks in Excel. It has multiple tabs, each with several groups of commands. सबके पास आपको हर एक group मिलेगा, several commands मिलेंगे. Then we have file menu. The file menu is simple menu. ठीक है, like other applications. It contains save as, open, new, print, Excel option, share. Formula bar. In formula bar, you can enter or edit data. Formula function will appear in a specified cell. जिसमें भी आप work करोगे एक specified cell में आपको वो दिखाई देगा form. Then name box. It display location. भाई कौन सा location है, क्या name है selected cell का. Then active cell, insertion of rows and columns is called cell. When you click on the cell, it becomes active cell.
और वो आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स शो करेगा. Then we have column. It is a group of cell that runs on the top of the page to bottom. Columns are identified by letters. और जो column है उनको हम कैसे identify करते हैं? Letters से. Then we have row. ये group of cell है जो run करता है from left of the page to the right. Then worksheet. Excel files are called workbooks. Each workbooks hold one or more worksheet. Now view of worksheet. Basically there are 3 worksheets. जूम कंट्रोल देन वी हैव, जिससे आप स्लाइडर को हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं. देन वी हैव वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली बार. भाई आपको वर्टिकली शो देखना है आगे क्या है या हॉरिजॉन्टली करना है तो आप कर सकते हैं. नाउ स्टेटस बार, इट इज अ थिन बार एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो. इट विल गिव यू इंस्टेंट हेल्प व्हेंस यू स्टार्ट वर्किंग इन एक्सेल. ये आपको एक इंस्टेंट हेल्प देगा. देन वी हैव मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल 2019. So this is a cell, it is the smallest but most powerful part of a spreadsheet. You can enter under your data into a cell either by typing or by copy paste. ठीक है, आप टाइपिंग भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो. डाटा कैन बी टेक्स्ट, नंबर और डेट. यू कैन कस्टमाइज इट. आप उसको अपनी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड, उसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो. देन वी हैव, आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो आपका कंटेन टोटल नंबर ऑफ कितनी रोज होती है, 1048576, और कितने कॉलम होते हैं, कितने सेल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज वर्कशीट. इट इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल विच कैन कंटेन अ वैल्यू और अ फॉर्मूला और अ टेक्स्ट. सो ईच वर्कशीट इज अ वर्कबुक विच इज एक्सेसिबल. वो एक्सेसिबल होती है बाय क्लिकिंग एट द टैब जो आपके बॉटम ऑफ द वर्कबुक विंडो होता है. Then workbook, it is a collection of multiple worksheet you can add or delete. Hide them with the workbook without deleting them. आप hide करेंगे उन्हें workbook में बिना उनको delete कर. Next is creating a new blank workbook. अब आपको नई blank workbook बनानी है. So how you will make it? One by one I will tell you. First of all you will select the file tab. आप file tab पे जाएंगे, backstage view आपको appear होगा. ठीक है. So after that what you will do, you will select new. आप जाएंगे new पे select करेंगे तो एक blank workbook आपको दिखाई दे. So now you can enter the data. Now to enter the data in a cell, click in the cell and start typing. आप cell में लिखोगे और type करना start करोगे. So that what you can do to enter the data through formula bars, first select the cell and then click on the formula. आप पहले cell को collect करेंगे और फिर formula bar में जाएंगे. Now saving a workbook, there are 2 methods to save the workbook. या तो आप save या फिर save as option. कोई सा भी option choose करके आप क्या कर सकते हो, अपनी workbook को save कर सकते हो. Now learn to save a new workbook. अब हमें नई workbook save करनी है. For that first step is click on the file menu button. सबसे पहले आप file menu button पर जाके click करेंगे. ठीक है, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, save और save as. आप save as ऑप्शन पे गए, ऐसे आपको एक विंडो अपीयर होगी जहां पे आप जाके अपना नाम भी चेंज कर सकते हो और आप सेव कर देंगे. जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी जो वर्कबुक है वो सेव हो जाएगी. नाउ ओपन अ एग्जिस्टिंग वर्कबुक. नाउ यू वांट टू ओपन अ एग्जिस्टिंग वर्कबुक, देन नेविगेट टू बैकस्टेज व्यू, देन क्लिक ओपन. सेलेक्ट कंप्यूटर, देन क्लिक ब्राउज. फिर आप कंप्यूटर को सेलेक्ट करोगे और क्लिक करोगे ब्राउज. राइट, ऐसे आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा लाइक दिस. आप अपनी फाइल को लोकेट कर सकते हो और आप जैसे क्लिक करोगे ओपन तो योर फाइल विल बी ओपन. नाउ यूजिंग टेम्पलेट्स. नाउ वी वांट टू यूज द टेम्पलेट्स. हमें टेम्पलेट्स का यूज करना है. सो इट इज अ प्री डिजाइन स्प्रेडशीट यू कैन यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक क्विकली. इट ऑफ्टन इंक्लूड कस्टम फॉर्मेटिंग, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज. ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको वर्कबुक क्रिएट करनी है तो क्लिक द फाइल टैब टू एक्सेस द बैकस्टेज व्यू. आप फाइल टैब पे जाएंगे और आप इसमें बैकस्टेज व्यू को एक्सेस कर सकते हैं. सेलेक्ट व्यू. सेवरल टेम्पलेट्स विल अपीयर बिलो द ब्लैंक वर्कबुक. आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ देखने को मिलेंगे. यू कैन सी ओवर हेयर. नाउ अ प्रीव्यू ऑफ द टेम्पलेट. अब आप उस टेम्पलेट का प्रीव्यू करना चाहते हैं तो यू विल क्रिएट अ
टू यू क्लिक क्रिएट, आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे, आप उसको सिलेक्टेड टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अ न्यू बुक विल वर्कबुक विल अपीयर, वो आपको ऐसा जो भी आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करा वो उस फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डाटा। सो द इंफॉर्मेशन यू टाइप इन एक्सेल, जो भी आप इंफॉर्मेशन टाइप कर रहे हो एक्सेल में वो क्या है, डाटा है। सो डाटा इज ऑफ 3 टाइप्स, नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूला। If we talk about number or numeric data, in this we type numbers 0 to 9 and symbols. Text data, number डाला आपने, आप alphabet भी डाल सकते हो, blank spaces भी कर सकते हो. Then we have formula ranging from basic mathematical operation like addition, subtraction to complex. आप basic calculation के साथ साथ complex calculation भी कर सकते हैं. Then a formula always start with equals. हमेशा आप देखेंगे जो formula होगा वो हमेशा equal to के sign से start होगा, जिसे हम values कहते हैं. Now manipulating with data, it allows you to cut. आप cut भी कर सकते हो, copy paste भी कर सकते हो cells within the data. Next is let's learn how to do. To select the data, how you will do it? Click in the cell and drag the cursor to the select cell. आप click करोगे cell में और cursor को drag करोगे जितने भी आप cell select करना चाहते हैं. Right? To select the row, click on the row and column header. आप row और column header पे जाएंगे, उसको select करेंगे. To copy and paste, select the cell and click on the copy in the home tab. ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करोगे सेल को उसमें आप जाके कॉपी कर सकते हो, तो आपका जो डाटा है वो कॉपी हो जाएगा. Now you want to cut and paste. Select the data and click on the cut in the home tab. Select the cell where you put the data. और जहाँ पे आपको डाटा को रखना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे जाके आप पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका डाटा वहीं पे पेस्ट हो जाएगा. अनडू कमांड इज यूज्ड, अगर आपको लास्ट एक्शन जो भी आपने परफॉर्म करा उसको कैंसिल करना है तो आप अनडू ऑप्शन का यूज कर सकते. यूजिंग द फिल हैंडल. नाउ हाउ यू कैन यूज द फिल हैंडल. सो फॉर दैट select the cell containing the content you want to use. Then however the mouse over the lower right corner of the cell, so fill the handle appear. तो जो भी हैंडल आपको अपीयर होता है आपको उसको फिल करना, तो आप वहां पे जाके क्या कर दोगे, आप ड्रैग करोगे फिल हैंडल को एंड आफ्टरवर्ड यू कैन सेलेक्ट, वी कैन सेलेक्ट E4 E11, रिलीज द माउस टू फिल द सेलेक्टेड सेल. आप माउस को रिलीज करोगे और फिल करोगे सेलेक्टेड सेल्स को. Now fill handle can also be used to continue a series for whenever the content of a row column आप देखते हैं फॉलो करता है एक sequential order like 1 2 3 और days Monday Tuesday Wednesday. fill handle can guess what should come next in the series. वो fill handle देखेगा कि next क्या आना चाहिए, right? Open Excel and enter some data in the worksheet. Now try to fill the column to continue series of your data. For that worksheet views के अगर हम बात करें worksheet को आप different तरीके से देख सकते हैं. Like first is to change worksheet view, locate the commands. आप commands को locate करोगे in the bottom right corner of the Excel window and select normal view, page layout view और page back view. So that the normal view क्या है वो आपका default view है सारी जो worksheet है Excel की उसमें. Then page layout view display how your worksheet will appear when you print. जब आप print करोगे तो आपकी worksheet दिखाई कैसे. Then we have page break view. ये अलाउ करता है कि आप लोकेशन ऑफ द पेज ब्रेक को चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश. Right, this is how you can change the view according to your wish in the Excel. This is all about in this chapter. Hope you understood very well. Now let's meet in the next class. Thank you.